Hello dear children, welcome to my English class. I am sure you all are doing good children. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Follow all the safety precautions. Follow all the COVID protocols and stay indoors as far as possible. Okay? जितना हो सके आप घर पे ही रहो, घर से बाहर मत जाओ, so that you remain safe. And if it is very urgent, if you have to go out, then wear a proper mask, use hand sanitizers, do not touch things outside, इधर उधर चीजों को मत छूते रहो, घर आकर के wash your hands properly, change your clothes, wash your feet, ठीक है? Take care of yourself children, stay healthy and stay safe. We are doing lesson number 1, that is let us be friends. And in this chapter children, we have completed the exercise in the book. Book में जितनी भी exercises थी, we have completed. So today we will be doing some written work. Writing स्किल के लिए आज हम थोड़ा सा वर्क और करेंगे एंड दिस वर्क हैज टू बी डन इन योर इंग्लिश नोटबुक. ओके, दिस वर्क हैज टू बी डन इन योर इंग्लिश नोटबुक. सो इन बुक एक्सरसाइजेस व्हाट ऑल हैव वी डन? वी हैव डन द एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन डिफरेंट स्किल्स. रीडिंग स्किल के लिए हमने क्या किया? वी डिड कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस. Comprehension exercises are to check your understanding also as well as to check your reading skill also. ठीक है? Reading skill मतलब if you are able to read, then only you will understand and then only you will be able to answer the questions. Okay? So reading skills को check करने के लिए, understanding को check करने के लिए हम comprehension exercises करते हैं. Then we have done grammar based exercises and we learned the use of is, am and are. ठीक है, हमने is, am and are का use पढ़ा. Then we did word building to improve your vocabulary. Vocabulary as I told you is your knowledge of words. ठीक है, आपको कितने words मालूम है? हिंदी में vocabulary को बोलते हैं शब्दकोश, शब्द का भंडार. कितने words की knowledge है? ठीक है, so word building में हमने क्या किया था? We completed the word chains. Okay, and as I told you, you can practice word chain at home also. Okay, you can ask your parents, your father, your mother, your elder brother or sister to give you 3 words and then you can form the next 3 or 4 words. Condition हमें मालूम है कि the next word should start with the last letter of the previous word. जो पहले वाला वर्ड है उसके लास्ट लेटर से नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होना चाहिए. ओके, दिस इज द कंडीशन. देन वी डिड सम लिसनिंग एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन द साउंड ऑफ ए. ठीक है, ए के साउंड पे बेस्ड हमने कुछ लिसनिंग एक्सरसाइजेस किया. ए इन सम वर्ड्स द साउंड ऑफ ए इज लाइक ए ओनली. गेट, ट्रे, ट्रेन, गेम. ठीक है, एंड इन सम वर्ड्स द साउंड ऑफ ए इज ए. जो ए का जो फोनिक साउंड है ए, कुछ वर्ड्स में ए का साउंड आता है. टैप, हैट, मैट, बैंड, हैंड, सैंड. ओके, सो इन सम वर्ड्स द साउंड ऑफ ए इज लाइक द वे वी से इट. ए को हम कैसे बोलते हैं? वी से ए. ठीक है, सो गेम, ट्रेन, पेन. ठीक है, गेन. एंड द फोनिक साउंड ऑफ ए इज ए. ए का जो फोनिक साउंड है दैट इज ए. ठीक है, तो हैट, मैट, सैट, बैट, कैट, सैंड. ओके, ठीक है ना. देन वी डिड, उसके बाद हमने क्या किया था? लिसनिंग एक्सरसाइज ये हो गई. देन स्पीकिंग स्किल. टॉक टाइम में हमने क्या किया? टॉक टाइम में हमने किया द यूज ऑफ इज एंड एम एंड आर. ठीक है, वेयर डू वी यूज एम एंड वेयर डू वी यूज आर? एज आई टोल्ड यू, एम इज यूज ओनली विथ आई एंड आर इज यूज when we talk to someone else. You are. ठीक है, जब हम दूसरों से बात करते हैं. एंड राइटिंग स्किल के लिए हमने क्या किया?
पिक्चर कॉम्पोजिशन, पिक्चर कॉम्पोजिशन किया था हमने। पिक्चर कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि पिक्चर इज गिवन, ठीक है, पिक्चर दी हुई है एंड बेस्ड ऑन द पिक्चर वर्ड्स फिलअप करके उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना था। ओके, सो राइटिंग स्किल में देयर इज अ पिक्चर कॉम्पोजिशन where Tia wants to describe about her visit to a zoo. When Tia went to the zoo along with her friends, so she is describing what all she saw in the zoo. Okay, so that we did. So today we will do some more work for writing skill. Okay, all these exercises we have done in the book itself. Now today we will be doing some written work and this written work will be done in your notebook. ये जो मैं आज written work कराने जा रही हूँ ये आपको अपनी notebook में करना है. Okay, notebook, that is your copy. Fine, so let us start. क्वेश्चन आंसर्स मैं कराऊंगी, ठीक है, छोटे छोटे वेरी स्मॉल क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ठीक है, जैसे क्वेश्चन आंसर्स आपने अपने इंट्रोडक्शन में किया, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज रंजना, माय नेम इज टिया, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 5 years old. ठीक है, सो इन दिस मैनर ओनली वी विल बी डूइंग वेरी स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दिस लेसन. ओके, सो लेट अस डू इट. So, write the answers. ठीक है, write WRITE, write the ANSWERS, write the answers. मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं लिखूंगी and you have to write the answers of those questions. Okay, now the first question is write the answers. Question number 1 is how old is टिया. ठीक है, how old is टिया मतलब टिया कितनी बड़ी है. Like if I ask you how old are you, so what do you say? You say I am 6 years old. ठीक है, when I am asking you, so we say I am. जब हम अपने बारे में बोलते हैं then we say I use करते हैं and with I we always use am. Here I am asking about टिया. How old is टिया? ठीक है, टिया की एज कितनी है. So we know that she says that I am 5 years old. We know that टिया is 5 years old. In the previous class आपको मैंने is, am and are का यूज बताया था. ठीक है, so like I am talking to you, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, I am teaching you, so I say I am talking to you, I say you. Fine, I मतलब मैं अकेले और you. When I say you, so you can be a single child as well as it can be the entire class also. ठीक है, so you जब मैं बोलती हूँ तो मैं किसी एक बच्चे के बारे में भी बात कर सकती हूँ और मैं पूरे क्लास से भी बात कर सकती हूँ. But when I say you, it means that you are present before me. ठीक है, जब मैं बोल रही हूँ yes you, तो that means you all are there in front of me. अभी भी right now I am teaching you, so I assume that you all are there. Okay, and we use he or she when we talk about someone who is not there. जैसे मैंने बताया था कि सपोज किसी के बारे में हम बात करते हैं जो कि वहां पे नहीं है, then we use he or she. Okay, where is Naman? He has not come to the class today, so that means he is not there. Tia has not come to the class today, she is absent. So when we talk about someone third person, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो I am first person and you are the second person. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में आपसे बात कर रही हूँ. जब हम किसी ऐसे के बारे में बात करते हैं who is not there, तो वो क्या होता है, that person is the third person. तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं then we use is. If it is singular, single, male, अगर मेल है तो हम he यूज करते हैं and if it is a female then we use she. ठीक है, सिंगल के लिए. So how old is टिया? अभी ना टिया is not here, टिया तो हमारे पास है नहीं, हमारे सामने नहीं है, तो how old is टिया?
तो टिया के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज. सो हाउ ओल्ड इज टिया? आंसर, टिया इज, हाउ ओल्ड इज टिया? बुक में हमने कितना पढ़ा था? टिया इज 5 years old. Now 5 you can write in numbers also, because in the book also number 5 is used. ठीक है, 5 की आप स्पेलिंग भी लिख सकते हो and you can write the number 5 also. In book number 5 is used, so I am also writing 5. How old is Tia? Tia is 5 years old. Okay, Tia is 5 years old. Question number 2 is, what is her favorite favorite toy? What is her favorite toy? Like lesson में Tia is directly telling about herself. लेसन में टिया डायरेक्टली अपने बारे में बता रही है. तो शी सेज माई फेवरेट टॉय इज माई बीच बॉल. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टिया. टिया इज नॉट प्रेजेंट हियर. टिया यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. हम टिया के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट इज हर फेवरेट टॉय? उसका फेवरेट टॉय क्या है? सो व्हेन वी राइट द आंसर, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज टिया? टिया इज 5 years old. व्हाट इज हर फेवरेट टॉय? व्हाट का मतलब होता है क्या. ठीक है. व्हाट इज अ क्वेश्चन वर्ड. देयर आर सम वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु. ठीक है. सो दीज आर नोन एज क्वेश्चन वर्ड्स. ये वर्ड्स को हम यूज करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए. सो व्हाट इज हर फेवरेट टॉय? टिया का फेवरेट टॉय क्या है? सो व्हेन वी राइट द आंसर, व्हाट डू? We simply write the name of the toy in place of what. जब हम आंसर लिखेंगे तो सिंपली what की जगह हम उसका फेवरेट टॉय लिख देंगे. ओके. When we ask a question, we always place a question mark at the end. क्वेश्चन के एंड में हम ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. दिस इज नोन एज पंक्चुएशन. जैसे जब आप सेंटेंस एंड होता है तो वी ऑलवेज प्लेस अ फुल स्टॉप. दिस शोज दैट द सेंटेंस इज ओवर. ठीक है. फुल स्टॉप हम लगाते हैं, इसका मतलब है कि सेंटेंस खत्म हो गया. अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो सो योर सेंटेंस इज इनकरेक्ट. आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं है. यू कैन से कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा डॉट है, बट दिस डॉट हैज गॉट लॉट ऑफ वैल्यू. अगर आप सेंटेंस खत्म करने के बाद ये डॉट नहीं लगाओगे, फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, तो वो मिस्टेक मानी जाएगी, वो आपकी गलती है. ओके. So when we write a sentence, when we write a question, we always place a question mark at the end of a question sentence. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, so that is a question sentence. तो क्वेश्चन सेंटेंस के एंड में we always place a question mark and we always place a full stop when we write a sentence. ठीक है. So what is a favorite toy? So when we write the answer in place of what, we will simply write the name of the toy. So what is a favorite toy? Beach ball. So answer BEACH, beach ball. ठीक है. Rest of the sentence will remain the same. Beach ball is her FAVOURITE favorite toy. Okay. So in place of what की जगह हमने क्या लिख दिया? बस नेम ऑफ द टॉय. इन प्लेस ऑफ what वी हैव सिंपली रिटन द नेम ऑफ द टॉय. what मीन्स क्या, तो क्या है, क्या की जगह हमने उसके टॉय का नाम लिख दिया. what इज अ फेवरेट टॉय? बीच बॉल इज हर फेवरेट टॉय. ओके. Now question number 3 is, अच्छा ओके चिल्ड्रन, यू राइट दीज टू. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आप लिखो. फिर आई विल रब दिस एंड देन 2 more question answers are there, and after that we will be doing frame sentences. मैं साइड में आ जा रही हूँ. राइट दीज 2 question answers. After that children 2 more question answers are there. ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे.
and after that we will be doing framed sentences. ठीक है? Okay? I hope everyone has written this. सबने लिख लिया? Question number 1 is how old is Tia? Tia is 5 years old. What is her favorite toy? Beach ball is a favorite toy. Okay? So I hope everyone has written this. सबने ये लिख लिया? ठीक है? इसको अभी मैं erase करके I will write question number 3 and 4. अगर यहीं पे लिख दूंगी तो बहुत छोटा हो जाएगा. It may not be very clearly visible. तो इसको मैं अभी रब कर रही हूँ. Okay? Question number 1, 2. Question number 3 is. Question number 3 is who is her best friend? उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? ठीक है, जैसे मैंने बताया who, when, where, how, what, these are question words. हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. सो हु इज हर बेस्ट फ्रेंड? हु का मतलब है कौन. व्हाट माने क्या? हु मीन्स कौन. सो हु इज हर बेस्ट फ्रेंड? उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? So who is her best friend? So here also in place of who की जगह बस हम सिंपली क्या लिख देंगे? In place of who we will simply write Mona. We will write the name of her best friend. So in place of who we will simply write Mona. उसकी फ्रेंड का नाम. Mona is her best friend. ठीक है? Rest of the sentence remains the same. Question is who is her best friend? उसकी best friend कौन है? So here we have used the word who because it is a question and we have placed the question mark at the end. Answer में question पूछा उसकी best friend कौन है? तो answer में हमने क्या बताया? Who is her best friend? Mona. So Mona is her best friend. So in place of who we have simply written Mona. ठीक है? And rest of the sentence remains the same. बाकी पूरा सेंटेंस बिल्कुल क्वेश्चन जैसा ही है. बट दिस इज अ क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन मार्क लगाया. दिस इज द आंसर. तो हमने इसके बाद फुल स्टॉप लगाया. हु इज अ बेस्ट फ्रेंड? मोना इज अ बेस्ट फ्रेंड. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर WHERE where do they play every evening? ठीक है? Where do they play every evening? Again जैसे मैंने बताया था when, where, how, what. So where is also a question word. Where means कहाँ. What मतलब क्या. Who मतलब कौन. And where मतलब कहाँ. So where do they play every evening? हर शाम वो लोग कहाँ खेलते हैं? So answer is every evening. Every evening they play on the swings. हर शाम वो लोग कहाँ खेलते हैं? Every evening they play on the swings. So see children, after the question we place a question mark and after the answer we place a full stop. Okay. So now children, you have to write question number 1, 2, 3 and 4 in your English notebook. These question answers are not there in your book. बुक में ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं. ये मैं अपने से फ्रेम करके आपको दे रही हूँ. ओके. ये मैं खुद से सेंटेंस लेसन के बीच से फ्रेम करके मैंने आपको दिए हैं. यू विल नॉट गेट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन द बुक.
So children, you have to see the videos every day. आप रोज 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 वीडियोस देखोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर वर्क. रोज वीडियोस देखोगे तभी आपका वर्क कंप्लीट होगा, नहीं तो आप वर्क अपना नहीं कंप्लीट कर पाओगे. ठीक है. दिस लाइन अगेन यू डोंट हैव टू राइट. ये मेरी तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन है कि राइट क्वेश्चन 1, 2, 3 and 4 इन योर इंग्लिश नोटबुक. ओके. ठीक है. सो मैं अभी साइड में हूं. कंप्लीट योर वर्क. वीडियो देख करके आप आराम से बैठ करके कभी भी अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाई दीज वीडियोज आर देयर. इन वीडियोज वी एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल एंड यू कैन कंप्लीट योर वर्क वेरी इजीली फ्रॉम दीज वीडियोज. ओके. आफ्टर दिस वन मोर वर्क इज देयर, दैट इज फ्रेम सेंटेंसेस. ठीक है. इसके बाद अभी मैं एक वर्क और कराऊंगी, रिटन वर्क. ठीक है. दैट इज फ्रेम सेंटेंसेस. So I hope everyone has done this. Now I can erase this. इसको मैं erase कर दूं अभी. Okay? Now next work is frame sentences. Make SENTENCES. ठीक है. मेक सेंटेंसेस. हिंदी में इसको कहते हैं वाक्य बनाना. इसमें वर्ड इज गिवन एंड यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दैट वर्ड. ठीक है. छोटा सा सेंटेंस फ्रेम करना है, उसमें वो वर्ड यूज करना चाहिए. ओके. यूज होना चाहिए. फ्रेम sentence with the given words. Frame sentences with the given words. Again children, this work is not there in your book. ये भी मैं अपने से करवा रही हूँ. ओके. फ्रेम सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स. गिवन का मतलब है दिया हुआ. ठीक है. एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड से आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है. मतलब एक सेंटेंस बनाना है एंड उस सेंटेंस में वो वर्ड आना चाहिए. ओके. सो फर्स्ट वर्ड इज कलरफुल. कलरफुल. कलरफुल का मतलब क्या होता है? रंग बिरंगा. वी कैन राइट द सेंटेंसेस फ्रॉम द बुक ऑल्सो, बट वी विल राइट डिफरेंट सेंटेंस. ठीक है. बुक वाले सेंटेंस हम अभी नहीं यूज करेंगे, हम कुछ और सेंटेंस बनाएंगे. सो व्हेन यू फ्रेम अ सेंटेंस, ट्राई टू फ्रेम वेरी सिंपल सेंटेंस. ठीक है. बहुत सिंपल सेंटेंसेस बनाओगे, बहुत बड़े बड़े एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं. ठीक है. सो लाइक टिया सेज माई बीच बॉल इज कलरफुल, सो यू कैन से माई अम्ब्रेला इज वेरी कलरफुल. ठीक है. और वी कैन सिंपली से आई हैव अ कलरफुल अम्ब्रेला, I have a colorful ball. ठीक है. There are colorful flowers in the garden. So we will write a simple sentence. हम लिखते हैं I have a colorful umbrella. UMBRELLA. I have a colorful umbrella. ठीक है. Since the word given is colorful, तो ये word जो है सेंटेंस में जरूर आना चाहिए. एंड उस वर्ड को हम अंडरलाइन कर देते हैं. ठीक है. सो एक छोटा सा हमने सिंपल सा सेंटेंस बनाया. आई हैव अ कलरफुल अम्ब्रेला. लाइक व्हेन यू गिव योर इंट्रोडक्शन, आप बोलते हो ना कि जैसे मैं अगर बोलूं आई एम रंजना, आई एम 6 years old, तो आप बोलते हो ना आई हैव मेनी टॉयज. सो आई हैव कलरफुल अम्ब्रेला. सेकेंड वर्ड इज फ्रेंड. फ्रेंड. ठीक है. फ्रेंड में आप लिख सकते हो राज इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड. आप किसी भी अपने फ्रेंड का नाम लेकर के लिख सकते हो. टिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड. और यू कैन सिंपली से आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स. आप सब लोग फ्रेंड्स अपना आपस में खेलते हो ना, तो वी कैन राइट आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स. ठीक है. सो लेट अस राइट आई प्ले विथ my
मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलता हूँ. और यू कैन ऑल्सो से रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड. लाइक टिया सेज मोना इज माई बेस्ट फ्रेंड, सो यू कैन ऑल्सो राइट योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस. सेंटेंस में ये जो वर्ड है, दिस वर्ड शुड बी देयर. ठीक है. थर्ड वर्ड इज फेवरेट. FAVOURITE. फेवरेट. फेवरेट मीन्स वी ऑल नो डियरेस्ट, सबसे पसंद वाला. तो लाइक टिया सेज माई फेवरेट टॉय इज माई बीच बॉल. ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो फ्रेम अ सेंटेंस लाइक दैट. कार इज माई फेवरेट टॉय, फुटबॉल इज माई फेवरेट टॉय, बैटमैन इज माई फेवरेट टॉय. ठीक है, तो आप ऐसा सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. सो लेट अस राइट कार, और यू कैन राइट बार्बी डॉल इज माई फेवरेट टॉय. जो भी आपका फेवरेट टॉय है. कार इज माई FAVOURITE favorite toy. Here I have written car, but you can write the name of any other toy also. आप किसी और भी टॉय का नाम लिख सकते हो. ओके, लाइक बैटमैन इज माई फेवरेट टॉय, बार्बी डॉल इज माई फेवरेट टॉय, ट्रेन इज माई फेवरेट टॉय. ओके. फोर्थ वर्ड इज टॉय. ठीक है. नाउ दिस सेंटेंस कार इज माई फेवरेट टॉय, इसमें फेवरेट वर्ड इज ऑल्सो देयर. नाउ वी हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस विथ टॉय. यू कैन यूज द सेम सेंटेंस फॉर टॉय ऑल्सो. ठीक है, आप इसी सेम सेंटेंस को टॉय के लिए भी यूज कर सकते हो, बिकॉज टॉय वर्ड इज कमिंग इन दिस सेंटेंस ऑल्सो. ऑफकोर्स यहाँ पे मैं वही सेम सेंटेंस नहीं यूज करूंगी. आई विल यूज अ डिफरेंट सेंटेंस. मैं एक डिफरेंट सेंटेंस फ्रेम करूंगी, बट यू कैन यूज दिस सेम सेंटेंस ऑल्सो. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार फेवरेट के लिए ये सेंटेंस लिख दिया तो आप दूसरे वर्ड के लिए ये सेंटेंस नहीं लिख सकते हो. इट इज नॉट दैट. यू कैन यूज द सेम सेंटेंस फॉर टॉय ऑल्सो. बट यहाँ पे मैं दूसरा सेंटेंस लिख रही. आई हैव मेनी टॉयज. टिया सेज ना आई हैव मेनी टॉयज, तो आप भी कह सकते हो ना आई हैव मेनी टॉयज. ठीक है, माई फेवरेट टॉय इज माई कार, ये भी बोल सकते हो. माई फेवरेट टॉय इज माई फुटबॉल. ओके. एंड वन मोर वर्ड इज देयर, दैट इज बॉल. ठीक है, अभी बॉल वर्ड से हमको सेंटेंस फ्रेम करना है. तो यू कैन से आई प्ले विद बॉल, आई हैव अ कलरफुल बॉल, माई बॉल इज वेरी कलरफुल, आई लव टू प्ले विथ माई बॉल. ठीक है, सो वी विल राइट. हम लिखते हैं यहाँ पे आई प्ले विथ बॉल. ठीक है, आई हैव ट्राइड टू मेक वेरी सिंपल सेंटेंसेस. बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने फ्रेम किए हैं, विच यू कैन इजीली राइट ऑन योर ओन. ठीक है. नाउ अगेन यू हैव टू राइट this in your English notebook. अगेन ये आपको इंग्लिश नोटबुक में लिखना है. यू विल नॉट राइट दिस सेंटेंस. ठीक है, ये सेंटेंस आपको लिखना नहीं है. अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज माई इंस्ट्रक्शन टू यू. दिस वर्क इज नॉट फ्रॉम द बुक. ये मैं अपनी तरफ से करा रही हूं टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल. जो भी इसके पहले हमने क्वेश्चन आंसर्स किया, एंड दिस फ्रेम सेंटेंसेस, दिस आई एम डूइंग ऑन माई ओन. ठीक है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा. क्लियर? सो यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक. इंग्लिश नोटबुक में आपको लिखना है. ठीक है, सो मैं अभी साइड में हूं. यू कैन कंप्लीट योर वर्क, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट नाउ, यू कैन ऑलवेज कंप्लीट इट लेटर. अब बाद में इसको कंप्लीट कर सकते हो. ओके, बट यू हैव टू कंप्लीट. सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए. ओके. फर्स्ट सेंटेंस इज कलरफुल. आई हैव अ कलरफुल अम्ब्रेला. फ्रेंड, आई प्ले विथ माई फ्रेंड. फेवरेट, कार इज माई फेवरेट टॉय. और यू कैन ऑल्सो राइट माई फेवरेट टॉय इज कार. ओके. टॉय, आई हैव मेनी टॉयज.
ball, I play with my ball, or I play with ball. Okay, so I hope you all have completed this, and if not now, you can always complete it later, but this work should be there in your notebook. सबको ये work complete करना है. Okay children, so I will stop now. With this we have come to an end of this lesson number 1. ठीक है, lesson number 1 हमारा complete हो गया. Now we will start with lesson number 2 in the next class. Okay children, so I will stop here today. Thank you so much.